قومی زبانیں اور قومی احساس کمتری۔ آج اقوام متحدہ کے تحت 21 فروری مادری زبان کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ 1952 کے ان لسانی مظاہروں سے لی گئی جو آج ہی کے دن ڈھاکہ میں شروع ہوئے اور پولیس فائرنگ سے 4 طلبہ ہلاک ہو گئے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ بنگلہ کو بھی اردو کے مساوی قومی زبان کا درجہ دیا جائے کیونکہ یہ ملک کی 56% آبادی کی زبان ہے۔ اگرچہ 1956 کے آئین میں بنگلہ کو اردو کے مساوی درجہ دے دیا گیا، مگر وفاق کے لسانی نقشے پر خون کی جو لکیر ابھری وہ آخر تک نہ مٹ سکی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نئے پاکستان میں اس مثال سے سبق لے کر مادری اور علاقائی زبانوں کے فروغ اور انہیں قومی درجے تک لانے کے بارے میں کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی، مگر ذہن پر الٹا اثر ہوا اور آج تک ہے۔ مثلا مئی 2011 میں مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ماروی میمن نے آئینی ترامیم کا ایک نجی بل پیش کیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بلوچی، بلتی، براوی، پنجابی، پشتو، شنا، سندھی، سریکی اور ہندکو کو قومی زبانوں کا درجہ دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 251 میں ترمیم کی جائے، مگر قومی اسمبلی کی قیمہ کمیٹی نے یہ بل مسترد کر دیا۔ جون 2013 میں نواز شریف کی تیسری حکومت برسر اقتدار آئی۔ اس بار مسلم لیگ نواز نے اپنے انتخابی منشور میں وعدہ کیا کہ علاقائی زبانوں کی ترقی اور انہیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نیشنل لینگویج کمیشن قائم کیا جائے گا۔ جیسے 1979 سے اردو زبان کی ترقی کے لیے مقتدرہ قومی زبان کا ادارہ کام کر رہا ہے، تیسری مدت ختم ہونے میں اب محض 1.5 برس باقی ہے، لیکن نیشنل لینگویج کمیشن کا دور دور تک وجود نہیں۔ اس کے باوجود ماروی میمن نے 9 دیگر ارکان اسمبلی کی تائید سے فروری 1914 میں ایک بار پھر قومی زبانوں میں اضافے کے لیے آئینی ترامیم کا بل پیش کیا، مگر اس بار بھی قومی اسمبلی کی قانون و انصاف سے متعلق قیمہ کمیٹی نے اس بل کو مسترد کر دیا۔ کمیٹی کے روبرو اس وقت کے اسپیشل سیکرٹری برائے وزارت قانون جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے یہ عجیب و غریب تعویل پیش کی کہ ایک پاکستانی قوم کی ایک ہی قومی زبان ہونی چاہیے۔ 2 قومی زبانیں تسلیم کرنے کا نتیجہ ہم نے 1971 میں دیکھ لیا۔ قیمہ کمیٹی میں اس بل کے حق میں جو واحد ووٹ پڑا وہ ڈیرہ غازی خان سے مسلم لیگ نون کی MNA سردار امجد فاروق کھوسا کا تھا۔ کمیٹی میں جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے ارکان نے اس بل کو غیر ضروری قرار دیا، جبکہ MQM کے رکن نے اجلاس سے غیر حاضری کو غنیمت جانا۔ ایوان بالا سینٹ میں ANP کے مرحوم حاجی عدیل کے پیش کردہ ایسے ہی بل کا یہی حشر ہوا۔ گزشتہ برس ستمبر میں سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ تقسیم سے قبل بھی روزمرہ سرکاری کام کاج سندھی میں ہوتا تھا، اور یہ اتنی ترقی یافتہ زبان ہے کہ 150 برس سے سندھی میں اخبارات و رسائل نکل رہے ہیں اور کتابیں چھپ رہی ہیں، لہٰذا اسے قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا نے اس بل کو منظور ہونے دیا، مگر پیپلز پارٹی کے بیشتر ارکان نے بل کی منظوری کے وقت یہ کہہ کر ایوان سے واک آؤٹ کیا کہ انہیں بولنے کا وقت نہیں دیا گیا، اور آج انہی میں سے بیشتر ارکان اسمبلی الاپ رہے ہیں
کہ सिंध का हर बशिंदा मर्दमशुमारी में अपनी जुबान सिंधी लिखवाए। समझ में नहीं आता कि खौफ किस बात का है। अगर इलाकाई जुबानें इतनी तरक्की याफ्ता हैं कि वो अपना अदब और मीडिया पैदा कर रही हैं, तो फिर इन्हें कौमी जुबान का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। जब भी इस तरह की कोशिश होती है तो मुल्क की बका खतरे में पड़नी शुरू हो जाती है और पाकिस्तानियत और इसका तशख़्ख़ुस लरजने लगता है। ये बात बहुत आराम से नजरअंदाज कर दी जाती है कि पाकिस्तान किसी बादशाहत का नहीं बल्कि वफाक का नाम है और इस वफाक ने पाकिस्तान तश्कील दिया है, ना कि पाकिस्तान ने वफाक बनाया। बेशतर दुनिया में अब तस्लीम किया जा रहा है कि बच्चे को अपनी मादरी जुबान में इब्तदाई तालीम हासिल करने का बुनियादी हक है और अगर मादरी जुबान इस काबिल नहीं कि इसमें तालीम हो सके तो ये रियासत का फर्ज है कि वो उस जुबान को मादूमी व पसमानदगी से बचाते हुए एक जिंदा जदीद जुबान के दर्जे तक लाए। अगर देखना हो कि ऐसा कैसे होता है तो फिर न्यूजीलैंड का तजर्बा देखिए, जिसने इन जज़ायर के असल बशिंदों की बोली मावरी को आज तरक्की याफ्ता जुबान के इस दर्जे तक पहुंचा दिया कि अब मावरी में स्कूल की सतह तक तालीम दी जा रही है। 1948 से पहले तक इब्रानी मतरूक जुबान के दर्जे तक पहुंच गई थी, मगर आज हर इसराइली बाशिंदा ना सिर्फ फर इब्रानी बोलता है बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर कोई इब्रानी में तालीम हासिल करना चाहे तो उसे आजादी है। इस वक्त इसराइल की दो कौमी जुबानें हैं, इब्रानी और अरबी। बरतानिया में तो बकौल शख्स से बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है, मगर स्कॉट्स और आयरिश को भी कौमी दर्जा हासिल है और 2012 में मादूम होती वेलिश जुबान को बचाने के एक बड़े कदम के तौर पर वेलिश असेंबली में 600 वर्ष में पहली बार एक कानूनी बिल वेल्शन जुबान में मंजूर किया गया। बरतानवी पार्लियामेंट में भले राब्ते की जुबान के तौर पर सब अंग्रेजी बोलते हों, मगर इलाकाई पार्लिमानों और बल्दियात में मकामी जुबानों के इस्तेमाल का मौका भी मसावी तौर पर मुहैया है। मगर आप कह सकते हैं कि हम तो तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल देकर क्यों मरऊब करना चाहते हो। चलिए भारत की मिसाल ले लेते हैं। भारतीय आइन के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी को मुल्क गिर राब्ते की जुबान का दर्जा हासिल है, क्योंकि तमाम भारतीय सूबे हिंदी नहीं समझते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जुबान सिर्फ अंग्रेजी है। मगर आइन के 8वें शेड्यूल में हिंदी समेत 22 जुबानों को कौमी दर्जा दिया गया है, यानी अगर सूबे चाहें तो इन जुबानों में कार्य सरकार चलाने के लिए खुद मुख्तार हैं। चुनाचा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के हाई कोर्ट्स और मातहत अदालतों में हिंदी को भी अदालती दर्जा हासिल है, जबकि तमिलनाडु में अंग्रेजी के साथ साथ तमिल को अदालती दर्जा हासिल है। आइन के 8वें शेड्यूल के तहत इन जुबानों को भी कौमी दर्जा दिया गया है, जिनके बोलने वालों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मसलन मणिपुरा महज 0.14%, सिंधी महज 0.24%, डोगरी महज 0.32% और कश्मीरी 0.54% आबादी की जुबान है। भारतीय करेंसी पर अंग्रेजी के अलावा हिंदी समेत 16 दीगर कौमी जुबानों में भी करेंसी की मालियत दर्ज है। तो क्या भारत टुकड़े टुकड़े हो गया या मजीद मजबूत हुआ? पाकिस्तान में मसला यह है कि राब्ते की जुबान जो कि उर्दू और अंग्रेजी है और कौमी जुबानों को एक ही समझ लिया गया है। हालांकि अगर इलाकाई जुबानों को कौमी और इब्तदाई तालीम का तदरीसी दर्जा मिल जाए तब भी राब्ते की जुबान उर्दू और अंग्रेजी ही रहेगी। अगरचा अवाम और नास का बतौर राब्ते की जुबान महज उर्दू से अच्छी तरह काम चल रहा है, मगर इस मुल्क में सिर्फ अवाम ही तो नहीं रहे, अशराफिया भी तो रहती है। वो बिना अंग्रेजी कैसे जिंदा रहेगी और हमें अंग्रेजी में कैसे समझाएगी कि उर्दू की क्या अहमियत है और दीगर जुबानें क्यों कौमी दर्जा नहीं पा सकती। चलिए, अगर मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ती है
तो ना दीजिए, इलाकाई जुबानों को कौमी दर्जा और मूंद लीजिए अपनी आंखें बाकी दुनिया की लिसानी तजर्बात से। मगर इसका क्या करें कि इस वक्त पाकिस्तान में यहां से वहां तक जो 72 जुबानें और बोली बोली जाती हैं, इनमें से 10 मादूमी के खतरे से दो चार हैं और आधी जुबानें उर्दू, अंग्रेजी, मीडियाई तसल्लुत के सबब अपने अदबी व सहाफती इजहार से कासिर हैं। क्या इन जुबानों को बचाना रियासत का फर्ज नहीं? ये काम महज पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स की जानिब से इन जुबानों में तबर्रुकन 2-4 किताबें छापने से तो नहीं होगा। लेकिन आप इन जुबानों को क्या बचाएंगे? आपसे तो उर्दू नहीं बचाई जा रही। यकीन ना आए तो देख लीजिए 24 घंटे के नशरियाती चैनल और बताइए कि वहां कौन सी जुबान बोली जा रही है। गालिब तो दूर की बात, फैज साहब भी जिंदा होते तो आज अपने टीवी सेट को संसार करके हाथ झाड़ चुके होते। ना आपको अपनी शनाख्त का यकीन है, ना जुबान का। और जो जुबानें जमीन और तारीख में गड़ी हुई है, उन्हें बोलते लिखते और इज्जत देते आपको शदीद एहसास से कमतरी लाहक है। कहने को पंजाबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुबान है, मगर कोई अखबार पंजाबी में हो तो मुझे भी बताइएगा। एक कई बरस पहले निकला जरूर था, मगर यारों ने इसकी इतनी पजीराई की कि दफ्तर की खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली और उर्दू को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से जोड़ने की सबसे ज्यादा वकालत यही पढ़ा लिखा पंजाब कर रहा है। आपने उर्दू का कुर्ता तो पहन लिया, मगर ये तो बताइए कि मादरी जुबान का पाजामा कहां रख के भूल गए? क्या बुल्ले शाह और वारिस शाह वगैरह वहीं रह गए हैं? पंजाबी का वजूद साबित करने और इस वजूद पर यकीन दिलाने के लिए अगर सबसे बड़ा सूबा अपनी ही जुबान के बारे में इस कदर एहसास कमतरी में मुब्तला हो, वहां वो बाकी पाकिस्तान की लिसानी आरजुएं कहां और क्यों समझेगा?